Welcome to our channel. Today we will learn about DC circuits and measurements, which is the part of current electricity. So we will start. Okay, first of all, what is the term electric cell? Electric cell. We know about electric cell. Electric cell क्या करता है? उसमें chemicals होते हैं and that chemical energy is going to be converted into electrical energy by the reactions. So an electric cell is a source of electrical energy which maintains a continuous flow of charge in a circuit. Should be charge in a circuit. Next term is electromotive force in a cell. What is EMF? Electromotive force. Electromotive force is the amount of work done per unit charge required to circulate the unit charge throughout the circuit once. पूरे सर्किट में एक बार चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए, पर यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए whatever work is required, that is called the electromotive force or simply EMF. So it is a simple definition is here. The work done by a cell in forcing unit positive charge to flow in the whole circuit, including the cell also, is called the electromotive force of the cell. And electromotive forces, it is work done, as I said, work done by a cell in forcing unit positive charge to flow in the, a simple way we can say it is work done per unit charge which is required to circulate throughout the circuit once completely once. उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो electromotive force is dW by dQ. In general we can say. Unit of EMF. So already we people have studied what is electric potential. Electric potential is V is as W by Q naught. It is work done per unit charge. That is the electric potential. And it is also work done per unit charge. So we can say EMF is almost same as the electric potential. How it is going to be differ? ये differ कैसे है? Because potential difference is across the terminals of a resistance or any circuit, but मतलब चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए कहाँ से कहाँ? थ्रू द टर्मिनल्स. दैट इज व्हाट? potential, electric potential. And electromotive force is the to work done per unit charge required to circulate the charge throughout the circuit once. पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में. तो यहाँ पे इंक्लूडिंग सेल भी है, उसमें सेल भी आएगा. और पोटेंशियल में सिर्फ टर्मिनल्स. लाइक आई कैन गिव द एग्जाम्पल कि अगर हमारा एक यूनिट चार्ज है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, या मैं यहाँ पे इसके दो पॉइंट्स ले लेता हूँ. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. इफ वी आर सर्कुलेटिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, देन वॉट एवर वर्क विल बी डन, दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V. एंड हियर आल्सो V का फॉर्मूला W बाई Q ही होगा. एंड if we are circulating the charge from this positive and ये आके वापस यहीं पॉजिटिव तक खत्म होता है, तो इसमें हमने सेल को भी इंक्लूड कर दिया. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव से स्टार्ट किया और पूरा सर्किट में घुमा और वापस पॉजिटिव तक आ गया. क्या? चार्ज. देन वॉट एवर वर्क हैज बीन डन, दैट इज कॉल्ड EMF, electromotive force. So unit of EMF will be same as the unit of terminal potential difference, and already we know unit of EMF is volt. So unit of EMF is, we can write unit
of EMF is unit of work done is joule and unit of charge is coulomb. So is joule per coulomb, and joule per coulomb is, which is nothing but volt. So this is the unit of EMF. So unit of EMF is volt. Simple way we can say. Okay, now how we can define the 1 volt? 1 volt का term हम लोग कैसे define कर सकते हैं? Simultaneously we can write since E is W by Q, तो 1 volt ये क्या होगा? Unit of work done is joule. So for 1 volt it will be 1 joule upon 1 coulomb. 1 joule upon 1 coulomb. So simple way we can say, if 1 coulomb of charge is flowing through any circuit completely, and by that time if work is done by 1 joule, then simply we say the EMF is said to be 1 volt. So if the flow of 1 coulomb of charge in a circuit, the work done by a cell be 1 joule, then the EMF is said to be 1 volt. Next part is internal resistance of a cell and back EMF. Internal resistance क्या होता है? What is the internal resistance? Simply we can say in cell there are chemicals to which we call electrolyte. Electrolyte वो chemicals होते हैं, and chemicals are the conductors. तो कंडक्टर क्या करता है? वो करंट के फ्लो को अलाउ करता है. कंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ करंट. सो सिंपल वे वी कैन से, अगर वो कंडक्टर हम उसे बोल रहे हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग सो दे विल कोलाइड विद ईच अदर. एज दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो कोलिजन की वजह से क्या होगा? दे विल अपोज देयर मोशन आल्सो. तो कोलिजन की वजह से जो उनका मोशन अपोज होगा, दैट कॉजेज रेसिस्टेंस in a cell, and that term is called internal resistance of a cell. So simple way, internal resistance किसी सेल में क्यों होता है? बिकॉज सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं they are called as the electrolyte, they oppose their motion, and due to that there is the resistance inside the cell, that is called internal resistance. So we have the term over here, the resistance offered by the electrolyte of the cells to the flow of current through it is called the internal resistance of the cell. Okay, now internal resistance depend on, what are the factors on which internal resistance depend? First is it is directly proportional to the separation between the two plates of the cell. अगर हम लोग जनरल बात करते हैं तो सेल हमारा कैसा होता है? सेल इज काइंड ऑफ लाइक लांचे सेल की बात करें तो इसके अंदर H2SO4 होता है केमिकल में, यहाँ पे H2SO4 होता है. यहाँ पे 2 प्लेट्स होती हैं, वन इज जिंक प्लेट, अनदर इज कॉपर प्लेट. वन इज जिंक प्लेट, अनदर इज कॉपर प्लेट, एंड दे आर कनेक्टेड ओवर हियर. और यहाँ से हम लोग जो भी अप्लायंस यूज़ करना है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक गैल्वेनोमीटर दैट विल डिटेक्ट द करंट. सो दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, दिस इज मेड अप ऑफ जिंक. सो इन दिस केस दिस H2SO4 is the electrolyte and these are the plates. This is the plate and this is the plate. तो ये 2 प्लेट्स हैं. अगर 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो internal resistance will be more, because if this distance is more, so electron have to travel from here to here. If long distance is there, so more collision will take place, so due to that internal resistance will be more. So we have
internal resistance of a cell depend on, or it is directly proportional to the separation between the two plates of a cell. Now second factor is electrolyte. Electrolyte is the second factor. It is inversely proportional to the plates area dipped into electrolyte. If more area is there, more area is dipped, then रेसिस्टेंस कम होगा, और कम एरिया डिप्ड है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा. इट इज सेम एज द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो हमें एरिया वाला टर्म लेना है. सो व्हाट वी हैव, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल is inversely proportional to the area of the plate. And third is it depend on the nature, concentration and temperature of the electrolyte and increases with the increase in concentration. Simple way we can say, if concentration is more electrons will be inside that one, so collision ज़्यादा होगा, और collision ज़्यादा होगा उसके वजह से क्या होगा, internal resistance will be more. Okay, तो यहाँ पे वही दिया है कि as there is the increase in concentration, internal resistance also increases, because ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उनके अंदर स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, एंड ड्यू टू मोर एंड मोर कोलिजन रेसिस्टेंस विल बी मोर. इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई वाज टेल दिस पार्ट कि किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस क्यों एराइज होता है, बिकॉज कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली एज दे ड्रिफ्ट, सो दे कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे से कोलाइड होके वो क्या करते हैं, दे अपोज देयर मोशन, दैट कॉजेज रेसिस्टेंस. सो सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर आल्सो. ओके, नाउ we have to find out the internal resistance in this part. Here we have few terms as I have mentioned over here. यहाँ पे एक बैटरी है और सेल that having EMF E, and this is small r is the internal resistance. This dotted part is the part of the cell, complete cell. तो complete cell का EMF is E, that's internal resistance is small r, and suppose current is flowing as I, and in series with this cell, an external resistance capital R is connected, and there is the key is connected, ammeter is connected in series, voltmeter is connected in parallel with the circuit. So in this case we have to calculate what will be current, total current, and what will be internal resistance of the cell. So what terms are there, just we can mention. Here E is the EMF of cell, electromotive force of cell. Small r is the internal resistance, capital R is the external resistance or simply resistance. External, मैं सिर्फ रेसिस्टेंस वर्ड यूज करूंगा उसके लिए. एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, external resistance, and is ammeter, V is voltmeter. We know ammeter is always connected in series with the circuit, and voltmeter is always connected in parallel with the circuit, and I be the current flowing through the circuit, I be the net current. So in this case, by definition of EMF and potential, we can say EMF का definition हमने क्या पढ़ा, it is work done per unit charge required to circulate the charge throughout the circuit once. मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम इसको दो पार्ट में पढ़ सकते हैं कि पॉजिटिव से चार्ज स्टार्ट हुआ और पूरे सर्किट में घूम के वापस पॉजिटिव पे आया, तो जो EMF है, जो पोटेंशियल है, दैट विल बी कॉल्ड एज EMF. एंड अगर चार्ज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सर्कुलेट किया
या फिर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक सर्कुलेट किया या यहाँ तक सर्कुलेट किया, ये सेल के अंदर नहीं गया, तो जो उसका पोटेंशियल होगा दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज V, which we have shown over here. तो V is the terminal potential difference. V is the terminal potential difference across R, resistance R, right. तो we are going to mention, मैं इसको 3 पार्ट में लिखता हूँ कि let capital W be the work done required to circulate charge, unit charge throughout the circuit once. It is capital W. Another I will take, let small w will be, it is the work done required to circulate, unit charge across capital R. Mean to say, ये W, this capital W is the work done required to circulate the unit charge throughout the circuit once. जहाँ से start हुआ था वहाँ तक वापस, और जो small w है ये work done required है to circulate the charge from this end to this end across capital R. And one more work we are taking, that is suppose W dash. It is work done required to circulate unit charge across the cell. So what we can say, अभी ये तीनों का ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा कि ये पूरा सर्किट में जो चार्ज हमने सर्कुलेट किया कंप्लीटली, वो 2 पार्ट में यूटिलाइज हुआ, वो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ और अक्रॉस द सेल हुआ. So in that case we can say W is equals to W plus W dash. We can say therefore W will be equals to W plus W dash, right? W plus W dash. अगर हम पूरे को चार्ज से डिवाइड करें, entire term if we are going to divide it by charge, so we can say W by Q is equals to W by Q plus W dash by Q. But if we are observing कि ये work done required to circulate the unit charge throughout the circuit once, that is EMF. So this term is EMF. We can write E is equals to, and another we have work done required to circulate, work done per unit charge required to circulate across the external resistance, that is V. So this term will be V plus I will take this also will be across here to here. If we are circulating the charge from here to here, then work done per unit charge will be potential, and that potential we are taking as a small v. मैं इसको small v ले लेता हूँ, यहाँ पे I will take it as small v, ऐसे small v. So this term will be small v. But we know E
that is to be calculated. So E is equals to, we know V is equals to I into R, I into capital R, and small v will be I into small r, because यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस है तो V will be I into small r, यहाँ का V, यहाँ का पोटेंशियल, that will be I into capital R, because here external resistance is as a capital R. So I is common in both the terms, so we can take out common, we will get I R plus R, that is E. Now यहाँ पे हम लोग बहुत से फार्मूलाज डिस्कस कर सकते हैं, तो वी विल कंटिन्यू विद दैट. ओके फाइन, we will see. So if from here we wish to calculate a small r, then we can write E by I is equals to R plus R. But if we have to calculate a small r from here, I will take this as equation 1. इसको मैं एक equation assume कर लेता हूँ, that I will take it as equation 1 से, right. This is equation 1 से, right. So we are getting from here, we require a small r, so it will be E by I minus कैपिटल R. हम ये R वाले टर्म को इधर भेज देंगे, तो E by I minus R. So further part we can write it as by doing the cross multiplication, so E minus I into R upon I. So this term can be written as E minus V by I into small r. So this is one of the formula, because V is equals to IR, this relation we have. So internal resistance we can calculate by this formula also. If EMF conditions are there, if EMF, terminal potential difference and current is there, then internal resistance can be calculated by this formula. And apart from that, if we want to calculate what will be the total current in the circuit, so that also we can find out. How we will find out? Just we can see here. I will write from equation 1. What we have from equation 1? What is equation 1? E is equals to I R plus R. And suppose we want to calculate the total current in this case, so I will be E by R plus R. So depend what things are given to us and what is to be calculated, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा. अब इस केस में अगर हमें पूछा कि what will be current in the circuit and EMF is given, internal resistance is given and external resistance is given, so we can use this formula for that calculation. Okay, now next part, I think so it is easy, and conceptually what we have to remember in this part कि यूनिट वर्क डन रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट, मतलब पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को कंप्लीटली मूव करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो दो पार्ट में यूटिलाइज होता है, एक अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और दूसरा अक्रॉस द सेल और इंटरनल रेसिस्टेंस. सो इसका जो पूरे का वर्क डन होगा वो दैट विल बी वर्क डन अक्रॉस दिस प्लस वर्क डन अक्रॉस this. So that is very important part. Okay, so this we complete. Now combination of cells, if number of cells are combined, then what will be their combination? For that we have an expression. If number of cells, first term is if number of cells are connected in series. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है एंड इफ देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो हम उनका इंटरनल रेसिस्टेंस
ऐड करेंगे तो वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. जस्ट विल सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. सो we can see in series. First term is in series. So these are the EMFs और cells. ये सेल है जिसका EMF E है, ये भी सेल है. Identical cells are there and their internal resistances are R. तो हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस वीडियो, फॉर दैट यू कैन वॉच, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस हमने पढ़ा है कि रेसिस्टेंसेस आर इन सीरीज. इफ रेसिस्टेंसेस आर इन सीरीज तो उसका फार्मूला आता है आर एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन, राइट, अप टू आर एन. इफ रेसिस्टेंसेस आर इन सीरीज. तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका ईएमएफ ई है, मतलब सभी जितने सेल्स हैं उनका ईएमएफ क्या है, ई है, एंड देयर इंटरनल रेसिस्टेंसेस आर आर. वो टर्म्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि व्हाट टर्म्स वी हैव. तो वी हैव वी हैव E is the EMF of each cell. EMF of each cell. Small r is internal resistance of each cell. Internal resistance of each cell, and capital R is the external resistance, and it is connected in series with the combination of cells, and I be the current flowing through the circuit, current. When this is closed, by that time this part I have mentioned already कि if n cells are there, n cells, total n cells are there, so total EMF of n cells will be n times of E because n cells are connected in series. अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो सेल्स हैं, हमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि while we are drawing the diagram, तो एक पॉजिटिव, नेगेटिव, then negative of this should be connected with positive, and again negative should be connected with positive. Then we say कि these cells are in assist. Two things are there, assist and oppose. Two positions are there. एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा तो we will say कि वो असिस्ट कर रहा है, तो we will add all EMFs. और एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तो उसमें अपोज करेगा. Their potential will oppose, their EMF will oppose. So in that case what will do, हम उसको माइनस करेंगे. तो यहाँ पे असिस्ट वाला कंडीशन है. तो टोटल EMF ऑफ n सेल्स हमें क्या मिला, E इफेक्टिव बिकम E plus E up to n times. N number of cells are here, so it becomes NE. And total internal resistance, as I have mentioned कि these are connected in series. तो हर एक सेल का internal resistance क्या है, small r है, और total number of cells are n. मैं यहाँ पे mention भी कर देता हूँ, n is the total number of cells. अगर n cells हैं तो उनका EMF कितना हुआ, n ही हो गया. और n cells हैं तो resistances are connected in series and these cells are connected in series, तो उनका total internal resistance क्या हो गया, that becomes NR. So total resistance of the circuit इतने पार्ट का क्या हो गया, it becomes NR, and उसके सीरीज में कैपिटल R कनेक्टेड है, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, R total resistance will be capital R plus NR. That term, capital R plus NR, it is the total resistance. And current is I. If I be the current flowing through the circuit, then current क्या होता है, it is EMF upon, that is total EMF upon total resistance. तो I is
total EMF becomes NE upon total resistance is NR plus capital R. This is the condition of current. What will be current? ये कभी कभी हम लोग को ऐसे पूछ सकता है कि what will be current if this much cells are connected in series, if these are their internal resistances and this is an external resistance. So उस केस में ये हमारा फॉर्मूला होगा. नाउ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा हमारा, वो ध्यान में क्या रखना है कि ये असिस्ट है या अपोज है. अगर असिस्ट है तो ईएमएफ हम ऐड कर लेंगे. कीवर्ड्स आई एम टेलिंग अबाउट दिस. एंड अगर सीरीज में है और हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, तो सीरीज में जो नेट रेसिस्टेंस होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. बट यहाँ सब आइडेंटिकल हैं, R हैं, तो R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू N. तो कितना हो गया वो हमारा NR हो गया. Rest of all are same. Okay, now in parallel same, ये पॉइंट सारे सेम रहेंगे. बट अभी डिफरेंस क्या है? ये टर्म सारे सेम रहेंगे, टर्म्स नहीं चेंज होने वाले. बट नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल में है. तो पैरेलल में है तो पैरेलल का केस अगर हम देखें तो एक पॉइंट जो हमें याद रखना है 1 अपॉन आर पी, ये की पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 1 अपॉन आर पी. तो यहाँ हमें स्मॉल आर पी लिखना है. रीज़न क्या है स्मॉल आर पी लिखने का? बिकॉज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इच सेल विल बी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर अप टू n बाई आर. तो वो ऑलरेडी कितना n टाइम्स ऑफ 1 बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 to n हम लोग करने वाले हैं, तो कितना आने वाला है? दैट विल बी n बाई आर. राइट, n टाइम्स है ना ये, 1 to n, जितने सेल्स हैं उतने टाइम्स ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस. सो इट बिकम्स n बाई आर. So that part I have written over here. 1 by R1, capital R1 is the internal resistance. तो 1 by R plus 1 by R up to n terms, तो it will be n by R. तो R1 कितना मिल गया हमें? यहाँ मैंने उसको RP लिखा है, यहाँ पे in textbook they have written R1. ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट चेंज कर देता हूँ. तो R1. So R1, 1 upon R1 is this. So R1 will be R by n. This is the net internal resistance of the cells when they are connected in parallel. सबका combined resistance, internal resistance, that will be R by n. Now total resistance क्या होगा? total resistance of the circuit, उसके साथ में ये सीरीज में कनेक्टेड है. ये एंटायर पैरेलल था, ये पूरा पार्ट, और उसके साथ में ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इज R by n प्लस कैपिटल R. नाउ दिस बिकम द टोटल रेसिस्टेंस. एंड तो करंट हमें क्या पता है? E by R. तो E is E एंड R is this टोटल रेसिस्टेंस. अच्छा, यहाँ E का कोई चेंज नहीं आया. क्यों? बिकॉज हमें पता है कि in parallel potential remains same. That keyword I will write here. In parallel combination, potential remains same. Okay, across all resistances we can say. तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है. तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल का टर्म है वही क्या है? ईएमएफ है. पोटेंशियल ही ईएमएफ है यहाँ पे. सो वी कैन फाइंड आउट. अच्छा, अब इसमें दो कंडीशन हमने मेंशन किया हुआ है. आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगा. 2 केसेस. इफ इंटरनल रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर. if small r is very very small as compared to capital R.
ये जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो हमें करंट क्या मिलेगा, एन ई बाई एन आर। सो इन दिस केस देयर फोर आई विल बी एन ई अपॉन एन आर. So n get cancel, so we are getting I is equals to E by R. If internal resistance is very small as compared to capital R. Now next condition is if small r is very greater as compared to capital R. मतलब capital R is very small as compared to कैपिटल आर इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल आर, तो हम ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर लेंगे. सो इट विल बी एन ई बाई आर. सो इन दैट केस विल गेट आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई स्मॉल आर. दैट इज द कंडीशन. नाउ इन मिक्स्ड grouping in sense there are cells which are number of cells are connected in series and that combination is connected in parallel. वैसा ही पैटर्न जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका जो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा और ईएमएफ क्या होगा एंड फाइनली उसमें करंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे already just I can write about what informations are given. So we can write let E be the EMF of each cell and small r be the internal resistance of each cell. Here n number of cells are connected in series. Okay, n number of cells are connected in series and वैसा ही पैटर्न पैरेलल में कनेक्टेड है. तो यहाँ पे n columns we can say, n cells are there and m rows are there. Anyway, just I will mention. तो ये दो टर्म ऑलरेडी हमने मेंशन किए. अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज आई बी द करंट इन सर्किट and capital R is the external resistance. तो बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे. एज वी कैन सी m रोज हैं. दिस इज, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका नेट ईएमएफ ये क्या हो गया, N हो गया. एंड नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, नेट ईएमएफ एक पार्ट का, दैट बिकम्स N नेट ईएमएफ. एंड नेट इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको मैंने R1 लिखा था, तो दैट विल बी NR. फॉर सीरीज दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये पिछले जैसा था लाइक दिस. अगर ऐसा है तो ये सीरीज का पार्ट है, तो इसका हमें जो नेट ईएमएफ मिला और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट विल बी NE एंड NR. ओके, now these all the systems NE and NR, now NE and NR are connected in parallel with m number of rows. ये number of rows है, तो ऐसे number of rows कितने हैं, m है. n number of columns we can say. मैं अगर ऐसे बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये nth कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है और m रोज हैं. m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, वी कैन सी. तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ n सेल्स कनेक्टेड इन वन सीरीज इज NE, जो पार्ट हमने ऑलरेडी मेंशन किया था. द टोटल नंबर ऑफ टोटल EMF of n cells connected
in one series is any. Fine. Since all series are connected in parallel, the EMF of the battery as a whole will be any. तो EMF of whole the battery ये भी हमने बताया, that is any, because they are connected in parallel. और मैंने पिछले में लिखा है कि in parallel EMF या potential remains same. तो यहाँ पे जो सीरीज में EMF था वही पैरेलल में भी EMF होगा. That part we have mentioned over here. That will be in parallel also. In parallel, that EMF will be same. Connected in parallel, the EMF of the battery as a whole will be any. Similarly, the total resistance, अब हम total resistance की बात कर रहे हैं, तो total internal resistance of the cells in series is NR. Such M series are connected in parallel. तो ऐसे NR का M सीरीज है, अप टू M है, अप टू N नहीं है, अप टू M है. तो इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन NR, बिकॉज उनका नेट रेसिस्टेंस जो है इन सीरीज वाला कॉम्बिनेशन का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का ये आ गया NR, फिर इसका भी NR. Now these all the NRs are connected in parallel. और कहाँ तक? M rows हैं, तो up to M तक है. So this term will be M by up to M है, up to M terms. तो M terms तक है, तो ये क्या हो गया? M by NR, because denominator is same, न्यूमरेटर इज 1 2 अप टू M, तो M by NR हो गया. तो R1 क्या हो गया? NR by M. ये रेसिस्टेंस मिल गया. नाउ दिस इज द नेट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड फॉर्म. तो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस मिल गया और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है, दैट इज इन सीरीज विद द होल सिस्टम. सो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स NR by M plus R. ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया. अभी हमें टोटल रेसिस्टेंस पता चल गया. वी नो द टोटल रेसिस्टेंस एंड करंट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड टोटल EMF also we get. Total EMF is as NE. N is the total EMF. So this becomes, the current becomes I is equals to EMF by total resistance. तो EMF is any, here it has been mentioned, any whole battery system or everything. So it becomes MNE by E into MN by NR plus MR. That we have to remember. Now Kirchhoff's law. Next is Kirchhoff's law. For Kirchhoff's law, okay, first law I will tell, and for Kirchhoff's law I have done a dedicated video for the Kirchhoff's law in current electricity. तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और आप वो वीडियो वेरी डिस्क्रिप्टिव वे आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वन, दैट यू कैन वॉच. आप लोग उसको देख सकते हैं. सो किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो किरचॉफ्स के दो लॉज हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड इज सेकंड लॉ. ऑफ कोर्स वी कांट से लाइक दैट. फर्स्ट इज द करंट लॉ, सेकंड इज वोल्टेज लॉ. और फर्स्ट के तीन नाम है: करंट लॉ, जंक्शन लॉ, और फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और करंट लॉ. तीन नाम है इसके. अगेन आई विल टेल यू. फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ जंक्शन लॉ, और किरचॉफ करंट लॉ. तीन नाम है. तो बहुत सिंपल टर्म है. ये जंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द जंक्शन? जंक्शन इज लाइक बड़े बड़े स्टेशन के वहाँ पे लिखा होता है कि ये जंक्शन है, ये स्टेशन जंक्शन है. लाइक वाराणसी इज अ जंक्शन, ऐसे बहुत से जगह पे. तो आप लोग वहाँ पे देखते हैं कि जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स जो आई
और उतनी ही ट्रेन्स वहाँ से चली गई। तो मतलब दैट इज़ अ कनेक्टिंग पॉइंट, दैट इज़ द जंक्शन, कनेक्टिंग पॉइंट, दैट इज़ अ जंक्शन। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है, करंट लॉ हम इसको बोलते हैं, तो टोटल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। टोटल करंट, या हम इसको और थोड़ा सिंपली वे वी कैन से algebraic sum of all the current meeting at a junction is always zero. So that term is here. In an electric circuit, the algebraic sum of the currents meeting at any junction is in the circuit is zero. So summation of I, what we have, summation of I is equals to zero. This is the Kirchhoff's first law or junction law or current law. Now next part I can explain it via the example. ये point है, this point is called the junction. O is the junction point. Currents are, some currents are reaching at the junction. Current I1 is reaching to the junction. Current I2 is reaching the junction. And some currents are the leaving the junction. Some currents. So I3 is leaving the junction, I4 is leaving the junction and this one. तो टोटल करंट एट दिस पॉइंट इज जीरो, मतलब जो करंट आ रही है, जो करंट जा रही है, सबका सम इज जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। वो साइन कन्वेंशन में हम क्या करने वाले, साइन कन्वेंशन में हम लोग लिख सकते हैं एज अ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होगा हमारा, करंट लीविंग द जंक्शन एंड करंट रीचिंग द जंक्शन। तो हम लोग ले लेते हैं करंट हियर, करंट रीचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, करंट रीचिंग द जंक्शन, रीचिंग द जंक्शन is taken as positive, is taken positive, and current leaving the junction, leaving the junction is taken as negative, that's all. So as we can say current reaching the junction is taken as positive, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 plus I2 because these two are what, reaching the junction। ये दोनों जंक्शन, मैंने बताया कि O is the junction, तो ये करंट है, ये O की तरफ जा रहे हैं, तो करंट रीचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो लिविंग द जंक्शन इज टेकन एज द नेगेटिव, सो प्लस, और यहाँ पे बोला है समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स इज जीरो, तो हमें प्लस ही करना है सबको। तो बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 is equals to 0. So simple way we can say I1 plus I2 is equals to I3 plus I4 plus I5. Ultimately we are getting the same term कि total current reaching the junction is same as the total current leaving the junction. This is the current law or first Kirchhoff's first law, or it is the junction law. नाउ सेकेंड लॉ, मैंने सेकेंड लॉ के बारे में बहुत, एज आई सेड कि मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में बात किया है, उसके लिए मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर, डेफिनेटली यू कैन रेफर फ्रॉम देयर, बट आई विल टेल जस्ट कि इसका ये क्या हम लोग बोलते हैं इसको। अच्छा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टोटल करंट जो है, जितना करंट रीच कर रहा है उतना लीव कर रहा है, तो टोटल करंट रीचिंग द जंक्शन इज सेम एज द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ करंट एट द जंक्शन। सो दिस लॉ is simply a statement of conservation of charges because current is conserved, so charges also will be
conserve. Now Kirchhoff's second law or loop law, or this is also called as voltage law, KVL. Kirchhoff's current law, in short we call it KCL, Kirchhoff's current law, KCL. And here it is KVL, Kirchhoff's voltage law, KVL, Kirchhoff's voltage law. So current law जैसे था summation of total current at a point at a junction is always zero, ऐसे ही ये loop के लिए होता है. That is also the reason we call it loop rule or loop law. The algebraic sum of the charges in potential, changes in potential around any closed resistance loop is zero. That is sum of V is zero. But we know इसमें अगर बैटरी है या सेल है तो उसका EMF होगा, but overall EMF is also kind of voltage, तो that will be this. इस वीडियो इसके बारे में इन डिटेल उस वीडियो में मेंशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने उसको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, और दैट वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर दिस वन ओनली, कम्प्लीटली सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बनाया है, KVL एंड KCL के ऊपर, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. Now next part we have Wheatstone's bridge. Wheatstone's bridge is also called as the Wheatstone network. ये है क्या एक्चुअली? It is, अब ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं Wheatstone's bridge and all, that is the application of Kirchhoff's law. Kirchhoff's law के application से. Anyway, just I will explain. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन devised a bridge arrangement of resistances by which the resistance of a given conductor can be determined. This arrangement is called Wheatstone bridge. इसने 4 रेसिस्टेंसेस को एक ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट किया, एंड ही गेट सम रिलेशन फ्रॉम देयर. और क्या रिलेशन मिला है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज को ये नाम है साइंटिस्ट का, जिसको उन्होंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से प्रूफ किया है. तो हमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पूरा पार्ट, डेरिवेशन पार्ट है, वो देखने से पहले आपको किरचॉफ्स लॉ, मैंने जिसके बारे में बताया कि उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्लेस करने वाला हूँ, दैट वीडियो, या आप डायरेक्टली चैनल पे जाके किरचॉफ्स लॉ का वीडियो आप देख सकते हैं. देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. व्हीटस्टोन्स ब्रिज. सो यहाँ पे क्या है? PQRS 4 रेसिस्टेंसेस हैं. PQR and S are the resistances which are the arms of the Wheatstone's network. Okay, resistances which are arms of Wheatstone's network. Wheatstone network. Okay, and this whole the system is connected with what? EMF or source of battery EMF. Anyway, that is not our concern. तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड. अच्छा, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, दैट आई विल टेल यू. नॉट, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल. हमने ये बताया था इन प्रीवियस, नॉट एग्जैक्टली इन प्रीवियस, बट उसके भी पहले वीडियो में, या आप लोग को नोन होगा डेफिनेटली, अभी मुझे वीडियो का टर्म याद नहीं है. एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, उसका मीनिंग क्या है? बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल है.
पॉजिटिव पोटेंशियल इज द हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इज द लोअर पोटेंशियल, और दोनों जब डिस्चार्ज हो गए मतलब क्या हो गया, उनका पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो बाय दैट टाइम नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट। तो हमें ये मेंशन करना है कि अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो गए तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो उनके बीच में जो करंट फ्लो है वो नहीं होगा, मतलब करंट विल बी जीरो अगर दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो गए, राइट। और एक चीज है कि हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ऐसे कुछ टर्म्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। वी कैन से, अच्छा यहाँ पे हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से करंट जा रहा है आई, और यहाँ नेगेटिव की तरफ जा रहा है। एक और टर्म में मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, कि जब करंट यहाँ तक आई है और यहाँ से दो पार्ट हो गए, तो यहाँ का करंट हमने लिया है I1, इस ब्रांच में I1 है, AB ब्रांच में I1 है, AD ब्रांच में I2 है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ का, तो जब ये B पे पहुँचा I1, तो B से इसके दो पाथ हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। G is the galvanometer, resistance of the galvanometer. I will mention capital G is the resistance of galvanometer. Okay, so we are talking कि I1 यहाँ तक गया, but I1 यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, right? तो I am going to take IG be the current through the galvanometer, additionally ले रहा हूँ मैं, IG is the current through the galvanometer, IG is the current through galvanometer, okay. सो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, यहाँ IG हो गया करंट, यहाँ I1 माइनस IG हो जाएगा, एनीवे और हम लोग अभी बात कर रहे थे नेट पोटेंशियल डिफरेंस का, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल B का और D का पोटेंशियल सेम हो गया, if potential at B is same as the potential as D, then potential difference across BD will be zero, and if potential difference across BD becomes zero, अगर V zero हो गया तो IG also will be zero, and then the circuit will be said as balanced, वो कंडीशन होगी, सर्किट विल बी बैलेंस्ड। तो हम पहले से ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि इफ सर्किट इज बैलेंस्ड देन IG विल बी जीरो, दैट पार्ट आई विल राइट। इफ सर्किट, शॉर्ट फॉर्म है सर्किट का CKT, इफ सर्किट इज बैलेंस्ड, if circuit is balanced, then potential difference across B will be same as the potential across D PD, and if it is there, therefore IG will be zero. IG is the current through the galvanometer, तो ये entire part हमारा खत्म हो जाएगा, will नॉट डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे बाद में, तो ये वी विल यूज़ दिस एज अ रिजल्ट, हम इसको रिजल्ट के रूप में यूज़ करेंगे। ओके नाउ ठीक है, तो यहाँ पे करंट I1 है, और अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो हुआ तो यही जो करंट है वही यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ का करंट I2 हो गया। तो हमने देखा नेट करंट वॉज हाई, that is split into two parts I1 and I2. Here again current will be I1 plus I2 and that will be ultimately I. तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसमें कर लिया। अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ।
KVL. सो हमारे पास दो लूप है, लूप लॉ हम लोग बोलते हैं, लूप लॉ. तो हमारे पास दो लूप है. आई विल राइट इन लूप. अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ. इन लूप ABDA, this loop ABDA. in this loop, इसमें मैं मेरे हिसाब से ये ले लेता हूँ, दिस पार्ट. ये हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर है. मैं ऐसे कैलकुलेशन ऑर्डर ले लेता हूँ. दिस इज माय कैलकुलेशन ऑर्डर, राइट. एंड सेम वे अनदर लूप वी विल टेक इन दिस पार्ट. इस पार्ट में मैं वो लूप ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा. नाउ इसमें मेरा कैलकुलेशन ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाए. दिस आई विल टेक इट. हमारे ऊपर डिपेंड है कैलकुलेशन ऑर्डर दोनों लूप के लिए. ऑर्डर इन सेंस वो आपको दिखे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं. इसमें मैं कैसे भी ले सकते हैं. मैं ऐसे ले लेता हूँ, दिस वे, दिस वे, दिस एंड दिस. इट शुड बी इन ऑर्डर. जो भी हम लूप का करंट ले रहे हैं वो कंप्लीट ऑर्डर में होना चाहिए. दैट वी हैव टू रिमेंबर. तो वी आर टॉकिंग इन दिस लूप, इस लूप में. तो इस लूप में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लूप एक्चुअली, ठीक है. उसमें डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने ये पार्ट डॉटेड वाला पार्ट ले लिया है, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी. तो इस लूप में करंट और रेसिस्टेंस हमने क्या पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग to Kirchhoff's, in short I will write KVL, according to KVL, Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा. करंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस. तो हम लोग ये देख रहे हैं करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर भी यही है. अगर हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर सेम तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं. और अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट और कैलकुलेशन ऑर्डर अपोजिट होता है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं. तो हमें क्या मिलेगा. प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस हम लोग लेते हैं. तो यहाँ करंट कितना है, I1 है, और रेसिस्टेंस इसका P है. तो I1 इंटू पी, we can write I1 into P. I1 into P, मैं यहाँ रीज़न भी डाल देता हूँ इसका. समेशन ऑफ I into R is 0. ये KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो हमारा ये पार्ट हो गया I1 into P. अब इस पार्ट में आ जाए हम लोग, इस पार्ट में, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस लूप, एंटायर लूप. तो ये पार्ट हो गया हमारा. अभी इस पार्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि IG जो है वो 0 है. तो IG इंटू जी करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये टर्म 0 है ऑलरेडी. IG 0 है तो 0 करने का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट जो है हम लोग अभी ये पार्ट देखें तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर इधर है, ये डायरेक्शन में, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर जो ये है हमने चूज़ किया है, और ये पार्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके प्रोडक्ट्स को हम माइनस में ले लेंगे. तो वी कैन से माइनस किसका प्रोडक्ट होगा, करंट एंड रेसिस्टेंस. तो I2R माइनस I2 इंटू R, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. बिकॉज दो ही पार्ट है ना. अब ये पाथ हमारा कंप्लीट हो गया. हमने ये टर्म को 0 बता दिया बिकॉज IG वॉज 0. तो 0 का किसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 0 मिलेगा. तो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, हमें क्या मिल रहा है, I1P इज इक्वल्स टू I2R. सो I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R अपॉन P.
करेक्ट, आर अपॉन पी, दिस टर्म वी आर गेटिंग। ओके, तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट ये वाला लूप हम देखें, ये वाला लूप। नाउ इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये कंप्लीट लूप बी सी डी बी। तो बी सी डी बी में नाउ वी कैन राइट इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी में इन लूप बी सी डी बी एज वी कैन सी सिंपल वे। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है दिस वन, और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर भी उसी डायरेक्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। सो I1 इंटू क्यू, पॉजिटिव लिखना है, I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू। नेक्स्ट ये पार्ट में आ जाएं हम लोग, तो यहाँ क्या है, इसका रेसिस्टेंस, हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ये है, दिस ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ये है, मिनटू से ये है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हियर टू हियर, तो उल्टा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कैलकुलेशन ऑर्डर के अगर अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ करंट है तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव हमें क्या क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ पे S है, एंड करंट इज I2, सो I2 इंटू एस, बट माइनस में होगा, मैं बता चुका हूँ कि क्यों माइनस में होगा, सो I2 इंटू एस। और अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये पाथ ले लिया तो I1 इंटू क्यू मिल गया, माइनस I2 इंटू एस ले लिया। अभी इस पार्ट का बात कर रहे हैं, अबाउट दिस वन। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द कैलकुलेशन ऑर्डर, बट यहाँ IG जो है 0 है, तो माइनस IG इंटू जी करना है, बट IG इज 0, तो हमें वो टर्म नहीं कंसीडर करना है। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। मैं IG इंटू जी को नहीं ले रहा हूं, माइनस IG इंटू जी आना चाहिए, बट IG 0 है, इसलिए 0 का टर्म मैं छोड़ रहा हूं, वो टर्म ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से हमें क्या मिला, फिर हमें मिला therefore I1Q is equals to I2S. So I1 by I2 we get it as S by Q, right? This is our equation 2 से, हम लोग इसको equation 2 ले लेते हैं। This is our equation 2 से, okay, दिस इज आवर इक्वेशन 2। सो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करें, 1 एंड 2, तो दोनों के LHS सेम है, तो वी कैन इक्वेट RHS। सो इक्वेटिंग RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, R बाई P इज इक्वल्स टू S बाई Q। वी कैन राइट इट सिंपली, P बाई Q इज इक्वल्स टू P ऊपर ले लिया, I mean 2 से P हमने इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो P बाई Q इज इक्वल्स टू R, S नीचे आ जाएगा तो R बाई S। सो P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। दिस इज द व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का फाइनल एक्सप्रेशन, कि अगर किसी लूप में गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है और उनके 4 आर्म्स हैं, देयर आर द 4 आर्म्स, और बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, देन P बाई Q विल बी R बाई S। 1 2 3 4, तो 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 4, 1 की जगह P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। रिमेंबर, जब ऐसा लूप दिया है तो विल नॉट प्रोसीड 1 2 3 4, नॉट प्रोसीड, वी विल प्रोसीड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, this way। तो P by Q is equals to R by S, that we have already proved. It is the proof of
what? Wheatstone's bridge. Now next is meter bridge. Meter bridge is nothing but the application of Wheatstone's network. Meter bridge is the application of Wheatstone's network. application है ये, तो application है तो मतलब सेम दिखना चाहिए, एंड ऑलरेडी सेम है. कैसे डिफर कर रहा है, कैसे इसका वर्किंग है, क्या होता है मीटर ब्रिज, ऑल वी विल डिस्कस. पहले तो नाम इसका हम लोग बात करते हैं, मीटर ब्रिज. ये भी ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये एप्लीकेशन है, तो इट इज आल्सो काइंड ऑफ ब्रिज, बट कौन सा? मीटर ब्रिज. इसमें मीटर स्केल यूज होता है. मीटर स्केल, मीटर स्केल जिसका लेंथ 1 मीटर है. एक स्केल यूज होता है जिसका लेंथ 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर. एंड ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका, द मीटर ब्रिज इज अ सेंसिटिव device based on the principle of Wheatstone's bridge for the determination of the resistance of a conductor of wire. Like मैं इस वायर को यहाँ पे रख दिया, मुझे इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इट्स सेंसिटिविटी इज मच मोर देन दैट ऑफ द PO box, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. PO box is also called as the resistance box. ओके, तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये जो है मीटर ब्रिज, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. तो सबसे पहले मुझे वही कंपेयर करना है कि हाउ इट इज सेम एज द व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. कैसे सिमिलर है, जस्ट वी विल सी. तो हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा R है. R के जगह मतलब जिसका रेसिस्टेंस बॉक्स है, मतलब इसका रेसिस्टेंस हमें नोन है, ये P है. आई विल से इट एज 1, तो ये 1 है. ये पार्ट 2 है, इट इज पार्ट 2. ये पार्ट 3 है, इट इज पार्ट 3. ये पार्ट 4 है, इट इज पार्ट 4. एंड B एंड D से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. B एंड D से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. तो ये पूरी तरह क्या है? बेस्ड ऑन द व्हाट? एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का. तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है. अभी इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग जब P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S हो जाए, हमने यही निकाला था, P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S. इफ इट इज बीइंग देयर, देन वी से कि सर्किट इज बैलेंस्ड. और अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो ऐसा होगा, P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S. और अगर ऐसा हुआ तो पोटेंशियल एट B सेम एज द पोटेंशियल एट D, और IG जो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है वो 0 होगा. सो ये पार्ट का कोई मायने नहीं होगा. तो मतलब अल्टीमेटली गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. अगर ऐसा हुआ तो हम बोलते हैं सर्किट बैलेंस्ड है. तो वो पार्ट हम लोग देख लेते हैं. तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन है, ये प्रैक्टिकल है, आप लोग करते हैं कॉलेज में. यहाँ पे 2 मेटालिक स्ट्रिप हैं, 3 है इनफैक्ट. ये मेटालिक स्ट्रिप 1 है, ये मेटालिक स्ट्रिप 2 है, और ये मेटालिक स्ट्रिप 3 है. इसमें इन दोनों के गैप में हमने रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, जिसका रेसिस्टेंस R हमने डिज़ायर एक पिक किया है. लाइक उसमें अलग अलग रेसिस्टेंसेस होते हैं, 50, 100, 200, 500, 1000 एंड सो ऑन. तो इसमें से एक डिज़ायर्ड रेसिस्टेंस हमने पिक किया, और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया इन दोनों गैप्स में, जिसका हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. S रेसिस्टेंस इज टू बी फाइंड आउट, अननोन रेसिस्टेंस ये वायर का, दैट इज टू बी फाइंड आउट. फिर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द जॉकी, और ये जो पॉइंट है ये AC जो है एक वायर है दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन.
ये मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन एक वायर है, इस वायर के ऊपर ये जॉकी को हम लोग स्लाइड करते हैं, वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं एंड विल फाइंड आउट द नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन ढूंढेंगे। नल डिफ्लेक्शन इन सेंस जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज no deflection, then current through the galvanometer is 0, then the potential at B will be same as the potential at D। तो हम बोलेंगे कि सर्किट बैलेंस हो गई। तो ये वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसके नीचे एक मीटर स्केल होता है जिसपे 0 to 100 का मार्किंग होता है सेंटीमीटर में। तो सपोज अगर मुझे नल डिफ्लेक्शन यहाँ 50 के पॉइंट पे मिला, 50 सेंटीमीटर मार्क पे, तो ये लेंथ मेरा 50 हो गया और ये भी लेंथ मेरा 50 हो गया बिकॉज ओवरऑल 100 सेंटीमीटर है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, R बाई S, R मैंने बताया पहले नोन है, इज इक्वल्स टू 50 बाई 50। तो इन दैट केस R विल बी S, फाइन। तो दिस इज द वे हाउ वी विल कैलकुलेट द अननोन रेसिस्टेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें जॉकी का नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे मिला तो मैंने एज्यूम किया था कि ये 50 है, बट अगर सपोज वो 50 नहीं कुछ और है, मैं इसको L ले लेता हूं, दिस लेंथ इज L। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितने सेंटीमीटर पे है, बिकॉज इस वायर के नीचे कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन का ये वायर है, उस वायर के नीचे क्या लगा होगा, एक मीटर स्केल लगा होगा। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर है, तो ये 100 में से माइनस कर लिया तो हमें ये भी मिल गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें जो जो टर्म्स दिए हैं मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ। R इज द रेसिस्टेंस बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स, और इसका रेसिस्टेंस हमें पता होगा, नोन है ये, इट इज नोन from the resistance box। S is the resistance of wire which is to be calculated। तो ये unknown है, unknown। now L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। और सभी टाइम, एवरी टाइम वी विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जॉकी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखाया तो हम लोग ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। L इज द बैलेंसिंग लेंथ, L इज द बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। G इज द गैल्वेनोमीटर, G इज द गैल्वेनोमीटर। तो ये एक्सपेरिमेंट करते समय आप लोग को एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जॉकी को स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर, और जहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन दिया हम बोलेंगे सर्किट बैलेंस हो गई। तो उस केस में फिर से क्या होगा, R बाई एस इज इक्वल्स टू P बाई क्यू, या P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस। एनीवे P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस, ये टर्म। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है कि फॉर बैलेंसिंग when galvanometer shows null deflection, मैं यहाँ पे लिखूँगा when galvanometer shows null deflection, then P by Q is equals to R by S। एंड वी हैव एवरी टर्म आई हैव ऑलरेडी मैंशन, और बाकी सब मैंने बता दिया। तो इन दिस केस ए बी इज एल, ए बी इज एल, तो दूसरा बी सी क्या हो गया, 100 माइनस एल, रेसिस्टेंस ऑफ ए बी। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म हमें मेंशन कर देना है कि लेट रो बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रो इज रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बिकॉज ये डिफरेंट वायर के लिए अलग अलग होगा यूनिट लेंथ। लाइक आई विल से कि जो हमने मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन का वायर लिया है ये वाला AC, उसका रेसिस्टेंस अगर 100 ओम है
और लेंथ ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर है, तो उसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना आया, दैट इज 100 ओम पर मीटर, बिकॉज ऐसा ही सिस्टम लेंगे हम लोग, तो लेंथ विल टेक एज 1 मीटर, दैट टर्म इज हियर। तो यहाँ पे रो जो है वो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, वो हर एक वायर का हमें दिया रहेगा, दैट विल बी नोन टू अस। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए बी पार्ट बी, ये क्या होगा, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ अपॉन दिस, एंड रेसिस्टेंस ऑफ बी सी इट विल बी रो इनटू 100 माइनस एल अपॉन ए। सो सिंपली P बाई क्यू, हमें दोनों को डिवाइड कर लें तो P बाई क्यू हमें क्या मिला, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म गेट कैंसल, विल गेट L बाई 100 माइनस L। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू PQ इन इक्वेशन 1 विल गेट, तो वही है जो भी हमें फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे बताया कि हमें S फाइंड आउट करना था, और हमें यहाँ पे मिला क्या मिला, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L। तो हमें S निकालना है, यस, अननोन रेसिस्टेंस, हाँ, तो S विल बी P बाई क्यू इंटू R, तो P जो है वो L है और Q जो है 100 माइनस L है। So we can get the unknown resistance. Now next term we have potentiometer. What is the potentiometer? Potentiometer is a device which is used to measure the potential difference. और इसके 3 एप्लीकेशन हैं, वो भी हमें पढ़ना है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आई एम टेलिंग, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस आल्सो विल इंक्रीज। सो रेसिस्टेंस ऑफ अ, ओके, ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसके पीछे रीजन बताया था कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड लॉन्ग डिस्टेंस, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनके बीच का कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो अपोजिशन ज़्यादा होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वी गेट दिस टर्म ऑलरेडी नोन है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और फिर हमें ये पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम क्या बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर R ज़्यादा होगा तो V ज़्यादा होगा, और V ज़्यादा है तो L भी ज़्यादा होगा, मतलब L ज़्यादा है तो V ज़्यादा होगा, सिंपल सा चीज़। तो V एंड L में हमें क्या रिलेशन मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर है क्या, अभी हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर, इट इज एन accurate instrument for measuring EMF of a cell or the potential difference between 2 points in an electric circuit. ये मीटर ब्रिज जैसा ही है, बट मीटर ब्रिज में हम लोग अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। एप्लीकेशन थोड़ा चेंज हो गया। वहाँ पे मीटर ब्रिज में जो हमारा वायर था वो 1 मीटर का ही होता था, बट पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है, दिस वायर इट मे बी ऑफ 2 मीटर, मिनिमम 2 मीटर एंड मैक्सिमम इट इज 16 मीटर, ऐसे पैरेलल कनेक्टेड होता है टिल 16 है, लाइक 1 मीटर के सेगमेंट में होता है। 1 मीटर, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, फिर ये 6 मीटर हो गया, तो ऐसे ही अप टू 16 मीटर, 2 to 16 मीटर। ये पोटेंशियोमीटर के वायर का ये सेगमेंट में कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड इन सेगमेंट्स। ओके, सो एज आई हैव मेंशन दिस पार्ट ऑलरेडी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम ऑलरेडी हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, एक ये टर्म, तो पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन द रेसिस्टेंस, एंड सेकेंडली क्या बताया, लेंथ के ऊपर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो
अगर पोटेंशियल जो है वो रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो पोटेंशियल आल्सो विल डिपेंड ऑन द लेंथ, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो आगे हमें पढ़ना है। तो वी कैन सी जस्ट आई विल कम टू द मेन पॉइंट। द पॉइंट जे इज कॉल्ड द नल पॉइंट, ठीक है, इसमें भी हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं जो गैल्वेनोमीटर का केस था। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे आर इक्वल्स द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो जिस पे नल पॉइंट मिला, मतलब इस पॉइंट पे अगर नल पॉइंट मिला तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए जे इज सेम एज द पोटेंशियल ऑफ जे बी। ए जे का पोटेंशियल और जे बी का पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो जे पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ है। इसका मतलब उसके पहले का पोटेंशियल और बाद का पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस ए जे एंड पोटेंशियल अक्रॉस जे बी विल बी सेम, सो उनका डिफरेंस विल बी जीरो। तो गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट जे, वो यहां पे मेंशन किया हुआ है। ओके, द पॉइंट जे इज कॉल्ड द नल डिफ्लेक्शन। इफ अगर हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे आर इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल। वन मोर थिंग आई विल मेंशन हियर, वो टर्म्स है कुछ चाहिए तो हम लोग लिख दें कि let rho be the resistance per unit length, rho be the resistance per unit length, per unit length, resistance per unit length। तो rho is r by l से, तो r क्या हो जाएगा, r will be rho into l। आगे हम लोग इसका यूज करेंगे this formula। So simple terms are here now. Let I be the current through the wire AB and rho dash be the resistance per unit length। ठीक है, इसको मैं rho dash डाल देता हूँ, rho dash, rho dash, ये नोटेशन अपने ऊपर है। If then if L be the length of the wire between A and J, between A and J, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे, ए जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई हमारा आई है और रेसिस्टेंस अक्रॉस ए जे इज आर विच इज सिग्मा डैश एल, तो आर रेसिस्टेंस इज सिग्मा डैश एल। तो सिग्मा डैश इज कांस्टेंट हियर, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, और आई भी उसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इन सीरीज करंट रिमेन सेम अक्रॉस ऑल, तो आई हमने सेम ले लिया है, और तो हमें क्या मिला, V इज इक्वल्स टू के एल। सो आई विल राइट इट एज V इज इक्वल्स टू के इंटू एल, के कॉन्स्टेंट है, दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। नाउ अच्छा, हमें मिल गया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विल गेट फ्रॉम हियर ओनली कि पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज ये के कांस्टेंट है, तो वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नेक्स्ट पार्ट इज when a constant current is passed through the wire of uniform cross section, the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that part. V is directly proportional to the length. Simple way we say, this is the principle of potentiometer. So what is the principle of potentiometer? When a constant current is passed through the wire of uniform cross section, the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the that length. This is the principle of potentiometer. तो अब यहाँ पे हम लोग पूरा ओपन सर्किट की बात अगर हम करते हैं तो we can say the potential difference V is equals to EMF of the cell for open circuit. For open circuit, EMF is same as the potential difference, or potential difference is same as the that.
तो वी आर गेटिंग E इज इक्वल्स टू KL. यहाँ V के जगह हमने ओपन सर्किट में क्या ले लिया, दैट इज E. Okay, so this is the principle of potentiometer. So everything we did. Now comparison. अब ये application है. Application of potentiometer. First application is the comparison of EMF of two cells. दो cells को compare करना है. तो हमने arrangement diagram में कैसा बनाया है, ये potentiometer के wires हैं. These are the wires of the potentiometer starting with the A. This is the segment of wires of the potentiometer AB. This is the driving cell. बैटरी B1 जो है ये ड्राइविंग सेल है. B1 is ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल. और एक प्रोवाइडेड कंडीशन है कि B1 must be greater than E1 and E2. ये कंडीशन है, याद रखना हमें, क्योंकि अगर B1 ज़्यादा नहीं है तो E1 और E1 एंड E2 विल एक्ट एज द ड्राइविंग सेल. ड्राइविंग सेल क्या है कि पूरे पोटेंशियोमीटर में जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाट, ड्राइविंग सेल. तो ड्राइविंग सेल का EMF होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन E1 एंड E2. B1 इज द ड्राइविंग सेल ऑफ EMF E. मैं थोड़ा यहाँ चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं E लिख देता हूँ, E. तो ड्राइविंग सेल ऑफ EMF E, दैट टर्म इज हियर. ओके, नाउ ये डायग्राम पार्ट है हमारा. ए पॉइंट दो सेल से कनेक्टेड है, एक का EMF इज E1, दूसरा E2, एंड दीज टू सेल्स आर इन कंडीशन ऑफ अपोज, नॉट असिस्ट. अपोज मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो ये कौन सा कंडीशन है, अपोज वाला, नॉट असिस्ट. कीप दैट इन माइंड. तो नाउ वी आर डूइंग वन थिंग वेरी सिंपल. ऑलरेडी प्रिंसिपल हमें पता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. वो प्रिंसिपल हमें यूज करना है. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L E. तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे. ये आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट ही करने वाले हैं, सो विल टॉक एक्सपेरिमेंटली. तो अगर हम लोग बात करें, ये दो पार्ट है यहाँ पे, एक की K1 है और दूसरा की K2 है. की K1 एंड K2, K1 एंड K2, आई विल से K1 ये है और K2 नीचे है. तो पहला कंडीशन ले रहे हैं, इफ K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन. K2 अगर ओपन है, ध्यान देना, अगर K2 ओपन है, ध्यान देने वाली चीज यही है, K2 ओपन है, इट इज नॉट क्लोज, तो E2 विल नॉट फंक्शन. E2 काम नहीं करेगा, तो सिर्फ E1 काम करेगा. एंड बाय दैट टाइम, सपोज जो हम लोग ये गैल्वेनोमीटर का जॉकी है, इसको यहाँ पे लेके आए, नल डिफ्लेक्शन कहीं पे हमें मिला, तो A से ये लेंथ जो है ये L1 है. तो हमें क्या मिला, कौन सा ये सेल इज यूज्ड, E1 इज यूज्ड, तो E1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. तो E1 विल बी इक्वल्स टू KL1. वही मैंने लिखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि ये when key K1 is closed and K2 is open, key K1 is close, ये क्लोज कर दिया गया, एंड दिस इज ओपन, ये ओपन है, तो ये E2 काम नहीं करेगा, तो सिर्फ कौन सा सेल काम करेगा, E1 काम करेगा. और E1 जब काम कर रहा है तो बाय दैट टाइम नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन एट लेंथ L1. तो हमें क्या मिला, E1
according to principle of potentiometer, E1 is directly proportional to L1. तो E1 will be equals to KL1. That term is here. So when key K is closed, now the okay, and K2 is open, by that time null deflection is obtained, null point is on the wire is at length L1, then we have this term. E1 is equals to KL1. This I will take it as equation 1. Now next condition is here. अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं कि ये वाला. Now K1 is open and K2 is closed. K1 open है, K1 is open, ये open है, K1 is open and K2 is closed. K2 को हम close कर दें, ये close कर दिया, ये close करेंगे तो E2 will function, E2 will work and E1 will not work. E1 काम नहीं करेगा. तो E1 काम नहीं कर रहा है, E2 काम कर रहा है. तो E2 के टाइम पे नल डिफ्लेक्शन इज सपोज एट L2, और सपोज जॉकी यहाँ पे आ गया, तो लेंथ, दिस लेंथ विल बी L2. सेम थिंग इज हियर वेयर की K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आई विल अंडरलाइन दैट वन. फाइन, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है. व्हेन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. व्हेन K1 इज ओपन, K1 is open and K2 get closed, then null deflection is obtained at L2, then null deflection is obtained at L2, and in that case we will get E2 is equals to KL2. This is our equation 2 से. हम इसको equation 2 ले लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन E1 एंड E2 को. सो देयरफॉर E1 बाई E2 विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 will get what? E1 by E2. LHS को LHS से डिवाइड किया एंड RHS को RHS से. KL1 upon KL2. K get cancel. So ultimately we are getting E1 by E2 is equals to L1 by L2. तो आप देखो, आपको L1 L2 नोन है, E1 E2 में से अगर एक भी नोन रहा तो दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या वी कैन कंपेयर द EMFs of the cells by this formula. Okay, next part is the determination of internal resistance of a primary cell. ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है. डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल. हमने प्राइमरी सेल यूज़ किया है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इज स्मॉल r, दैट इज़ टू बी कैलकुलेट इन दिस. ये वापस से ड्राइविंग सेल है और ये EMF हमें इस प्राइमरी सेल का फाइंड आउट करना है. दिस इज़ द प्राइमरी सेल, दिस इज़ द ड्राइविंग सेल, एंड इस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस इज स्मॉल r, दैट इज़ टू बी कैलकुलेटर्स. सो वेरी सिंपल, अगेन प्रिंसिपल हमारा वही है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और E इज इक्वल्स टू KL. बट याद रखना है, अगर हमने इसमें इसका ओपन सर्किट के लिए किया तो EMF आएगा, क्लोज सर्किट के लिए किया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. सो वी हैव इनिशियली द की K1 इज क्लोज्ड, की K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन. तो हम लोग की K1 इज क्लोज, वी आर टॉकिंग K1 इज क्लोज, इसको क्लोज कर रहे हैं, एंड K2 इज ओपन. जब ये K2 ओपन है तो EMF ये बैटरी का काम नहीं करेगा, मतलब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, तो हमें ये सेल काम करेगा और इसका EMF इज E. सो आई विल से कि ये ओपन सर्किट हो गया. अगेन आई विल से if K2 is open,
तो ये ओपन सर्किट हो गया, K2 इज ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट में नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट पॉइंट J जॉकी, तो दैट लेंथ इज L1। इसका लेंथ हमें क्या मिला, A2J का ये वाला लेंथ L1 मिला। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द cell is equals to EMF for the open circuit, because this part is open, तो open circuit के लिए ये EMF का काम करेगा। तो in that case E is directly proportional to L1, so E is equals to KL1. This is our equation 1 से। Now second condition is here कि हम लोग एक सुटेबल रेसिस्टेंस इस बॉक्स में से निकाल लेते हैं एंड K2 को क्लोज करते हैं। K2 को क्लोज किया, रेसिस्टेंस बॉक्स से एक रेसिस्टेंस निकाला, मतलब इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। अगेन आई विल रिपीट, K2 को क्लोज किया और इसमें से रेसिस्टेंस बॉक्स में से एक सर्टेन वैल्यू का रेसिस्टेंस निकाला, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज V अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया। तो अब हमें जो EMF के जगह हमें क्या यूज करने को मिलेगा, V। सो दैट पार्ट इज हियर। सुटेबल resistance R is taken in the resistance box and K2 is also closed। K2 को हमने क्लोज कर दिया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज V between the ends of the resistance R। so null point is obtained at L2 suppose, वो टाइम पे जब हमने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ से रेसिस्टेंस R ले लिया, तो नल डिफ्लेक्शन सपोज दूसरे पॉइंट पे J डैश पे मिला जिसका लेंथ L2 है A से, एंड यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो गया। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हमने पढ़ा है, तो V इज इक्वल्स टू KL2, बिकॉज K कॉन्स्टेंट सेम रहने वाला है, बिकॉज वायर रिमेन्स सेम, वायर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वी आर गेटिंग V is equals to KL2. This I will take as equation number 2. ये V is equals to KL2 हो गया। So now we will divide these two, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। So from above two equations, E by V is equals to K and K get cancelled. We are getting L1 by L2. And already we people have studied, ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल R is given by, ये हमने निकाला था, स्मॉल r इज इक्वल्स टू R E by V minus 1, राइट। तो इंस्टीड ऑफ E by V we are taking L1 by L2. so this is the way to find out the internal resistance of a cell। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये फार्मूला कैसे आया हमारा। so we can say यहाँ पे since already we have studied I is equals to E by R plus R, this part we have, और हमें small r चाहिए, तो we can say it is small r चाहिए, तो capital R plus R will be E by I, right। so small r will be E by I minus capital R। now just do the cross multiplication of these two terms। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमें मिलेगा, या हम लोग रहने देते हैं इस टर्म में E by I है, तो इसी टर्म में आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय R एंड डिवाइडेड बाय R, दोनों कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इसका, राइट। तो जब ये किया तो नाउ इन बोथ I have what I did, I have multiplied this numerator by R as well as denominator by R, means they are going to be cancelled, nothing I did। तो हमें ये टर्म आगे क्या मिलेगा, we can write
E R minus R upon V. I into R is V, right? So E into R, अब दोनों में से R को हम लोग कॉमन ले लेते हैं. R को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? E by V minus 1. This is small r. And this result we use over here. ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया. This result we use over here. यहाँ पे यूज़ कर लिया. Small r is equals to capital R in bracket E by V minus 1. So, but already from this relation we have E by V as L1 by L2. तो E by V के जगह हम L1 by L2 डाल देते हैं. तो we are getting finally small r is equals to capital R, internal resistance of a cell is equals to capital R in bracket L1 by L2 minus 1. So we complete this topic by this one. And what was the topic? It was current electricity ka DC circuits and measurements. Thanks for watching this video.